Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths chapter number 8 algebraic expression and operations on them, practice set 36. Now in the practice set 36 we are supposed to find out some of the questions are given to us. We are supposed to find out that we are having a correct alternative or not. मतलब आपको जो है क्वेश्चन इस तरह से दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन. मतलब सब्ट्रैक्शन के सम से आपको क्या करना है, उसमें करेक्ट अल्टरनेटिव को ढूंढना है. ठीक है, तो हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन विद अस, दैट इज 3x minus 11y minus 17x plus 13y and the bracket closed. Now here what we are supposed to do, we are supposed to open the bracket first of all. पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद जो है इस पे ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो 3x minus 11y minus 17x plus 13y. Therefore यहाँ पे हमने 3 डॉट्स डाला therefore का. देन आफ्टर दैट we are supposed to open the bracket first of all. BODMAS रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे. सो therefore 3x minus 11y. now minus into plus, it will be minus, so minus 17x, then minus into plus, it will be minus, so here minus 13y. like that way it will come. now let us make the pairs of the given one. तो एक जैसे वेरिएबल्स फॉलो की हम क्या करेंगे, जोड़ियां बनाएंगे. यहाँ पर एक है x वाला टर्म, यहाँ पर एक है x वाला टर्म. सो टुगेदर वी आर गोइंग टू राइट डाउन 3x minus 17x minus 11y minus 13y. ठीक है, ये होने के बाद लेट अस सबट्रैक्ट द फॉलोइंग और ऐड द फॉलोइंग. तो यहाँ पर माइनस 17 एंड 3x प्लस में दिया हुआ है, तो माइनस प्लस अगेन माइनस. सो दैट इज वाई हियर फ्रॉम द 17 वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द 3. सो वी विल गेट हियर 14, है ना, ये हमको मिला 14 एंड x. बट 17 is a bigger number having the minus sign, so that's why we'll put the minus sign before. now after that minus in minus and minus it will be plus, but the sign of the bigger number will come because 13 is a bigger number. तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 13 एंड 11 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24. सो इट विल बी 24y. लाइक दैट वे विल ऑब्टेन. यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे, -2 को कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पर हमारा अंदर क्या बचता है 7x माइनस प्लस प्लस 12y. like this way this is the answer. so we are having the answer as correct alternative is -2 into 7x plus 12y. so therefore correct alternative is -2 7x plus 12y and the bracket closed. like this way we have completed our first sum. let us go with the second question. now we are having another question number 2, that we are supposed to find out the alternative for the given multiplication sum. अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन सम में यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट दिया हुआ है 23x square y cube into z into minus 15x cube y z square. ये वाला एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है. तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को ही रिपीट करेंगे. वी विल रिपीट द क्वेश्चन फर्स्ट. सो 23x square y cube z into minus 15x cube y z square ब्रैकेट क्लोज्ड. ये हो गया क्वेश्चन रिपीट करने के बाद. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ओपन द ब्रैकेट इन सच अ वे दैट वी आर सपोज टू गेट इट. अब ब्रैकेट ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को इस तरह से लिखेंगे 23x square y cube z into minus 15x cube y z square.
ठीक है। अब इसमें से सारे जो टर्म्स है ना एक जैसे वाले, हम उन टर्म्स को एक दूसरे के करीब या नजदीक लेकर आएंगे। तो 23 एंड 15 विल राइट डाउन द फर्स्ट। सो हियर 23 into minus 15 like that way, x square into x cube into y cube into y into z into z square। हो गया, ये इस तरह से लिख लिया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 का 5, 4 will be carry forward, 15 2s are 30, 30 plus 4 it will be 34। so here 345 माइनस में आंसर आएगा हमारा। देन into x square into x cube, so x raised to 5 into y plus y cube plus यहाँ पर y है तो किस तरह से जाएगा, 3 plus 1 तो y raised to 4 into z square है और z है तो 2 plus 1 it will be 3 तो z cube। like that way we'll write down minus 345 x raised to 5 y raised to 4 and z cube। ठीक है, तो this is the correct option which we have found for the given multiplication sum। फिर 6 का भी देखना चाहिए था। Now the third question we are going to start from 36 exercise। The first one is that solve the following questions। अभी जो है आपको equations फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So the first question is given to us 4x plus 1/2 is equals to 9/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाले को हम फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 4x 1/2 is equals to 9/2। getting, therefore 4x is equals to, this will go to this side, so here it is in the plus, it will go there and becomes the minus, so 9/2 minus 1/2। ठीक है, तो इस तरह से होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 9 minus 1 है तो दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है ना, so then we can subtract it very easily। so therefore we can write down here 9 minus 1/2, so therefore 4x is equals to 8/2। so 8 1s are 8, 8 4s are 2 4s are 8, so here it will be 4। so therefore 4x is equals to 4, therefore x is equals to 4/4। so 4 1s are 4, 4 1s are 4, so it will be equals to 1, therefore x is equals to 1 is the आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया है, x is equals to 1। बहुत ही सिंपल मेथड है, once again we are going to repeat it, kindly see that। now 4x plus 1/2 is equals to 9/2, this is the question। so after repeating the questions what we have did, we have took the 1/2 on the equals to other side, ये equals to के other side पे जाएगा तो ये यहाँ पर प्लस में है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये किस तरह से हो गया, यहाँ पे 4x is equals to 9/2 minus 1/2, so denominators are same, so we can subtract them easily, so that's why 9 minus 1 is equals to 9 minus 1/2 हमने लिखा है यहाँ पर। फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा। 8/2 को जो है हम डिवाइड करेंगे 8 को 2 से, so then we are going to get the answer as 4। so 4x is equals to 4 यहाँ पर लिखे, so then आफ्टर दैट x के पास ये 4 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाकर वो इक्वल्स टू के अदर साइड पे डिवीजन हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 4/4, सो दैट्स व्हाई 4 1s are 4, so answer is 1। so therefore x is equals to 1। so like that way we have solved our first sum। let us go with the second one। now the second question is 10 is equals to 2y plus 5 है ना, तो here what it is given, this 10 will take over here and this 2 will becomes over here। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको वहां पर ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2y is equals to, पहले तो क्वेश्चन को हम वैसे ही लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू रिपीट द क्वेश्चन। सो 10 is equals to 2y plus 5 है ना, therefore 2y is equals to 10 minus 5। ये हो गया, क्योंकि 5 है ना तो ये 5 को यहाँ पर उठाकर लेकर आए तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पास जाकर के माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर इट विल बी 2y is equals to
5. 10 minus 5, obviously 5. So therefore y is equals to 5/2. So this is the answer for the second sum. Now let us go with the third, fourth and fifth you are going to do by your own. Now I am going to solve the sixth question for you. आप जो है थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला अपने आप से करेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं. देन आफ्टर दैट व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर दैट विल सॉल्व टुगेदर. Now here we are having the sixth question as phi x plus 1 is equals to 74. Now phi x plus 1 is equals to 74 ये आपको दिया हुआ है. So before going to start we are supposed to repeat the question once again. So here we are writing x plus 1 is equals to 74. Now after that we will open the bracket. So phi x plus 5 is equals to 74. Therefore phi x. अब ये वाला phi जो है हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो it will becomes minus with the 74. So here 74 minus 5. So therefore phi x is equals to 74 minus 5. It will be 69. है ना, ये 69 आया. Therefore x is equals to 69 upon 5 is the answer for the given sum. So like that way we have completed the question number 6. Let us go with the word problem which is given to us as the question number 4. Now here we are having the question number 4 is Rakesh's age is less than Sania's age by 5 years. The sum of their ages is 27 years. How old are they? आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? राकेश जो है वो सानिया की एज से 5 साल कम है और उन दोनों की एजेस का टोटल जो है अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 27 इयर्स आता है. तो आपको बताना है कि वो आज कितने साल के हैं. ठीक है, वंस अगेन राकेश और सानिया की एज में आपको डिफरेंस कितना दिया है? 5 साल का दिया है और आपको ये बोला है कि सम ऑफ देयर एजेस इज 27 और उनकी एजेस को अगर हम टोटली ऐड करें तो कितना आता है? 27 आता है. एंड देन इट इज आस्क्ड दैट हाउ दे आर ओल्ड टुडे, मतलब आज की डेट में उनकी एज कितनी है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट अस गोइंग टू बी राइट द what the information we are having. So here we'll write down let us x be the age of सानिया. है ना, सानिया का एज हमको कितना बोला है? नहीं बोला है, तो हमने उसको क्या ले लिए? x ले लिए. नाउ व्हाट इज द कंडीशन वी आर हैविंग? द राकेश एज. अब हम किसका एज निकालेंगे? राकेश का एज निकालेंगे. कितना है राकेश का एज? सानिया की एज से 5 साल कम. तो सानिया की एज यहाँ पर कितनी है? x है. हमको निकालना है, 5 साल कम करना है, मतलब हम माइनस करेंगे और कितने को माइनस करेंगे? 5 को माइनस करेंगे. तो ये जो आया है हमारे पास, ये किसका एज हो गया है? राकेश का एज हो गया है. सो दिस इज व्हाट x माइनस 5 years आर द इज इक्वल्स टू राकेश एज. नाउ बाय द कंडीशन, क्या कंडीशन है हमारे पास? द एजेस ऑफ देयर सम टोटल इज इक्वल्स टू 27. है ना, तो 27 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 27 को लिख करके इस तरह से दोनों की एज को ऐड करने पर हमको क्या मिलता है? 27 मिलता है. ये हमने लिखा. नाउ लेट अस गोइंग टू बी ओपन द ब्रैकेट. नाउ इफ वी विल ओपन द ब्रैकेट वी आर फाइंडिंग दैट x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 27. ये वाले को हम यहाँ भेज देंगे और ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे. तो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 5. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2x इज इक्वल्स टू 32. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 2. है ना, ये वाला जो है यहाँ पर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो वहां जाके क्या बन जाएगा? डिविजन हो जाएगा. तो देयरफॉर इट विल बी 2 1s are 2, देन 2 1s are 2 and 2 6s are 12. So therefore x is equals to 16 years. कितना आया? x is equals to 16 years. तो यहाँ पर हमको किसका एज मालूम पड़ गया है?
सानिया का एज मालूम पड़ गया है. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द एज ऑफ द राकेश नाउ. गेटिंग? सो देयरफॉर यहाँ पर अब देखिए हम लोगों को किस तरह से करना है. राकेश एज इज इक्वल्स टू x माइनस 5 ईयर्स है ना. राकेश का एज कितना है? x माइनस 5 ईयर्स है. तो x कितना है हमारे पास? 16 ईयर्स सानिया का एज है ना. तो हमने यहाँ पे लिखा 16 माइनस 5. सो 16 में से 5 जाता है, कितना बचता है हमारे पास? 11 ईयर्स बचता है. सो देयरफॉर वी आर हैविंग एज ऑफ सानिया इज इक्वल्स टू 16 ईयर्स and the age of Rakesh is equals to 11 years. ठीक है. So like that way we have completed the fourth question. Let us go with the fifth one. In a garden there are 60 more trees of jambul and then ashoka trees. If there are 200 trees in the garden altogether, then find the number of trees of jambul. आप देखिए आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में. इन अ गार्डन, एक गार्डन में 60 ज्यादा ट्रीज है किसके? जाम्बुल के, अशोका ट्रीज से. अगर टोटल ट्रीज 200 है गार्डन में, तो आपको क्या बोला है? जाम्बुल के सही में कितने ट्रीज है वो आप फाइंड आउट करके बताइए. क्वेश्चन में आपको एक चीज की क्वांटिटी नहीं दी हुई है और उसको आपको क्या बोला है? 60 मोर ट्रीज है. तो हम यहाँ पे किसके ट्रीज के बारे में उसने बताया है कि जामुल के ट्रीज जो है अशोका ट्रीज से 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? किसको कंसिडर करेंगे? अशोका ट्रीज को कंसिडर करेंगे. गेटिंग मी? वी विल कंसिडर द अशोका ट्रीज. गेटिंग? सो देयरफॉर वी विल कंसिडर द अशोका ट्रीज. लेट द अशोका ट्रीज बी वाई. गेटिंग मी? हम क्या लेंगे यहाँ पर? पहले x लिया था, हम कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं. तो आप x की जगह पे m, w जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो. बट आई एम टेकिंग हियर m. सो हियर व्हाट इट इज? लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज आर x. लेट द नंबर ऑफ अशोका ट्रीज बी एन है ना. ये ले लीजिए. अब नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ जाम्बुल इज इक्वल्स टू m प्लस 60. 60 मोर बोला है ना. तो m यानी ये अशोका ट्री से 60 ज्यादा, 60 ज्यादा. तो ज्यादा का मतलब प्लस होता है और 60 की जो है नंबर से दिया हुआ है तो हमने उसको क्या करे? m प्लस 60 लिखे. ठीक है. नाउ बाय द कंडीशन, by the condition, what is the condition? Total number of trees in the garden is 200 है ना. So therefore by the condition total number of trees in the garden is equals to 200. Therefore m plus 60 is equals to 200. समझ आया कैसे लिखे? टोटल ट्री बोला है ना, तो टोटल का मतलब होता है दोनों चीजों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो यहाँ पे m प्लस 60 इज इक्वल्स टू 200. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को खोलेंगे. m प्लस 60 इज इक्वल्स टू 200 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2m प्लस 60 इज इक्वल्स टू 200. अब इसके आगे हम आगे सॉल्व करेंगे. Therefore 2y plus 60 is equals to 200. Therefore 2y is equals to 200 minus 60. Therefore 2y is equals to 200 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 140 है ना. तो 140. Therefore y is equals to 140 upon 2 is equals to 70. ठीक है ना. तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 and 0 will come. So like that way 70. So therefore ये y क्या है? अशोका ट्री है. Therefore number of अशोका trees is equals to
70, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज इज इक्वल्स टू now here what we are having the number of Ashoka tree is 70। तो हमने यहाँ पे क्या किए, नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज इज इक्वल्स टू m प्लस 60। m क्या है हमारे पास 70 है, तो 70 प्लस 60 इट विल बी 130। सो देयरफॉर नंबर ऑफ जाम्बुल ट्रीज इज इक्वल्स टू 130। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमने कंप्लीट कर लिए एंड वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ जाम्बुल ट्री इज 130, ठीक है, फाइन। Now here the question number 6 we are going to do. Question number 6 is given to us. Shubhangi has twice the number of notes of rupees 20 as number of notes of 50. She has total 200 rupees. Then how many notes of 50 she has? आपको क्या पता करना है, 50 रुपीज की नोट्स उसके पास कितनी है। अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है, एकदम ध्यान से समझिए। शुभांगी के पास टोटल 200 रुपये है, उसमें जो है आधे से ज़्यादा नोट्स और जो दो तरीके की नोट्स है उसके पास, एक है 20 रुपीज़ की नोट्स और दूसरा है 50 रुपीज़ की नोट्स। अब 50 रुपीज़ की नोट्स जो है उसके पास वो कम है और 20 रुपीज़ की नोट्स उसके पास ज़्यादा है, ट्वाइस है। मतलब अगर 50 रुपीज़ की नोट उसके पास 5 है तो 20 रुपीज़ की नोट उसके पास 10 है, ट्वाइस है ना, तो उसका एग्जैक्टली डबल नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, 200 रुपीज है, तो आप ये पता करके बताइए कि 50 की नोट्स कितनी है उसके पास सही में, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ आया। तो लेट अस गो विद द सॉल्यूशन ऑफ द 6th क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 is y, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इज 5 वी हैव कंसिडर, गेटिंग। नाउ देयरफॉर शी हैज द 20 रुपीज नोट्स ट्वाइस then 50 rupees notes, है ना, that is equals to 2 into y। 2 into y का मतलब ये है कि 2 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गेटिंग मी। तो यहाँ पर टोटल अब जो है यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम कि 2 into y किए तो ये 2x हो गया, ठीक है, ट्वाइस हो गया है। लेकिन शुभांगी के पास जो है She has 2 into 20, ये है किसके लिए, 20 रुपीज के लिए है ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, शुभांगी हैज टोटल 200 रुपीज, है ना, टोटल शी इज हैविंग 200 रुपीज। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको डबल कर रहे हैं 20 को, तो हम यहाँ पर 207 लेंगे, 270 लेंगे, समझा। तो यहाँ पर किस तरह से, वो ये 70 क्यों लिया है, बिकॉज वी हैव एडेड 50 एंड 20 रुपीज टुगेदर, तो ये कितना हो जाएगा, 70 रुपीज हो जाएगा। तो ये 70 को हम यहाँ पर जो है डबल ले रहे हैं, इसीलिए 200 में हमने ऐड कर दिए इसको, ठीक है। यहाँ एडिशनल था, यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिखे थे हमने, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, टोटल मनी शी हैज, कितना है उसके पास, 200 है ना, रुपीज 200। लेकिन नोट्स कौन से है उसके पास, 50 के और 20 के। तो यहाँ पर इसीलिए 50 प्लस 20 कितना हो जाता है, 70 रुपीज हो जाता है। सो देयरफॉर इट विल बिकम 270 रुपीज इन टोटल, समझा। अब हम 270 को लेकर के आगे अपना इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो बाय द कंडीशन therefore 50 नंबर ऑफ नोट्स है ना, तो 50y प्लस 20y, 20 इंटू 2y, 20 इंटू 2y, क्योंकि हमने यहाँ पे 20 के नोट्स को डबल लिए है ना, तो 20 इंटू 2y
इज इक्वल्स टू 277 रुपीज। ये कंडीशन हो गया। अब ये 2700 क्यों हो गया? क्योंकि हम यहाँ पर डबल ले रहे, तो जब यहाँ पर डबल ले रहे तो हमको यहाँ पर भी उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, 100 उसमें ऐड होकर के यानी 2700 रुपीज हो जाएगा। नाउ लेट अस गो फॉर द टू सॉल्व। Now here what we are going to do, we are going to solve it. So therefore 50y plus 2 into 40, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 40y आ जाएगा। therefore 2700 है ना, तो आप यहाँ पर ये दोनों को ऐड किए, 50 plus 40 इट विल बी 90y इज इक्वल्स टू ये 2700 आया। अब ये एक जीरो हमने कैंसिल कर दिए। therefore 270 अपॉन 9, ये यहाँ से इधर गया तो इसके पास 9 बच जाएगा, सो दैट्स वाई 270 अपॉन 9, सो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 एंड दिस जीरो go in the question, so it will become 30. So therefore y is equals to 30. So in total she has the 30 notes of 50 rupees. So like that way we have completed the sixth sum. Now after this the seventh question is also there given in the exercise, that is homework to you, that you will do by your own, and like that way we have completed our all the questions from this chapter. Inshallah in the next video we'll meet with the next chapter. अब तक के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।